जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कसूर मौजूद हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कोई बुज़ुर्ग बैठे हैं तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं बाबा जी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार बुल्ला शाह ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੈਦਲ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਮਾਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਮਾਤ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ ਜਿਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਹਾਜੀ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜੱਟ ਪੰਧ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਾਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਜੀ ਬੈਠਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਬੁੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਣਾ ਉਹ ਹਾਲੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲਓ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹਾਲੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹਾਜੀ ਸੁਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋ ਹਾਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਐਤਕੀ ਤਸਬੀਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਲੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਪੈ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਾ ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਵਧੂ ਕਰਕੇ ਆ ਹਾਜੀ ਬੁੱਲੇ ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਮਤ ਹੈ आप अकीदतमंद हैं बाबा बुल्ले शाह हाँ जी के? अकीदत में मानी है सरकार बुल्ला शाह दे आपका नाम? फयाज अहमद दुध वाला फयाज साहब, आप यहीं कसूर के रहने वाले ਹਾਂਜੀ हैं? ਕਸੂਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਆਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਰਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੁਖੰਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਆ ਜਾਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਾਬੇ ਮਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੁਆਲੀਆਂ ਇਹ ਮਾਨੀ ਦੇ ਏਡੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ कैमरामैन ज़रा उधर दिखाएंगे सोना चांदी, ये जो दो कब्रें हैं कह रहे हैं बुजुर्ग, ये कैमरामैन ने आपको दिखाया है। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਹੈ, ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਉਹੀ ਜੀ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਮਗਰ ਘੋੜਾ ਤੇ 8-10 ਮਗਰ ਮਰੀਦ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਲੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਮਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਦਮਾਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੈ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਸ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਖਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ जी, ਸੁਣਾ जी, जी, जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਪਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਬੋਝੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਯਾਰ ਕਿਲੋ ਖਜੂਰਾ ਹੋ ਲਿਆ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲੀ ਪੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੇ 11 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी, जी। ਵਰਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀਆ ਤਬਰਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਰੋਜ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ
ਬਾਬੇ ਟਾਹਲੀ ਪੀਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਸੁਬਾਹ ਮੇਰੀ ਫਲੈਟ। ਲੋ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਫਲੈਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਟਿਕਟ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਂਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਆਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ VIP ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। जी ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਸੋਫਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਐਵੇਂ ਦਲੀਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਆਈਏ, मैं उन्होंने किया, मैं क्या बेटा मेरी बात सुनो। कहती जी अंकल। मैं क्या बेटा मैं आके बैठ जाऊँ? कहती अंकल मैं आपको बताती हूँ। चली गई। मुड़ के वो लीजी आई है, आके मैं बराबर से आई है ना, मैं क्या बेटा मैंने एक बात कही थी आपको। और लीजी कहती जाओ अंकल बैठ जाओ। मैं जाके उत्थे बैठ गया। मैं क्या वाह जी, यार नहीं खेड ही लगियां जी। उत्थों मुड़ के मैं जहाज चो जो उतरिया तो अगों मेरी अपना बेटा आया गड्डी लै के, उत्थों बैठिया गड्डी च, उन्हें उत्थों ही लबैक वाले को रोस्ट होया सारा, ले लिया। रोज़े का महीना थी, घर गया। लो मियाँ सैरी खाओ तो चली उमरा कर। लो जी असी सैरी खा के तो उतों उमरा कर टुर पे, अगों मस्जिद जाके ना गुसल किया, वहाँ राम बन्ने ने, नफल पढ़े ने, नफल पढ़ के फिर गड्डी च बह गए। ड्राइवर के मगर मैं दोवां दी सीट मिली है, मेरे नाल बंदा कोई नहीं बैठा। पैसे किहदे दित्ते ने? हालांकि उत्थे गड्डी ठीक बाई फीट करके जाते हैं, गड्डियां भी बड़ियां वधिया ने उत्थों दी। अगे गया जने जाके लो जी अपना किराया लेंदे ने, उमरा करिए। बच्चे मेरे ने व्हील चेयर रही थी, मेरे वास्ते लत्त कट्टी थी। आया बंदा एक पाकिस्तानी थी, उमरा करना हाजी? मैं क्या करना है। किन्ने पैसे? कहते 3000 रियाल, 300 रियाल। मैनू बाबे का भाड़ा ना याद थी, उन्हें मेरा नाम 11 रखे। मैं क्या 111 रियाल दिया, लै 111 रियाल। मैं ना भेजा। उस बाद कोई 10-11 जने आए ने, हाजी उमरा करना। मैं क्या 111 रियाल देंगा। नहीं जी, चले गए ने। उस बाद फिर जो सब तो पहले आया थी, क्यों हाजी? मैं क्या जी गल तेन आखी थी। कहना गल पक्की? मैं पक्की। कहना व्हील चेयर खलोती। लो जी मैं मुंडे नूं कहा, मैं क्या यार तू वहीं कर अपनी मां नूं भाल है। तो कहना तुसी? मैं क्या मैं देना। लो जी तो जेड़ा पहलो उमरा कर लवे फलानी जगह ते आए ना, क्योंकि रोज़े बड़ा रश होते, अज वाला समा होंदा है। आप एक दिन लभदे फिर गुआच जाएंगे, लभ्या नहीं जाना, फलानी जगह ते आ जाना। ठीक है जी। मैं मुंडे नूं पहलों कहा जो गया ना, यार मैं हिजरे असवद दा बोसा लैना। वो कहना मियाँ जी मैनू 11 साल हो गए ने, एक बार लिया, वेखो उत्थे रश किन्ना, चंगे भले बंदे को नहीं लिता जाता। मैं चुप कर गया। लो जी मैनू उन्हें बहा लिया, पहला तवाफ आए। उन्हें कहा लो जी एक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत आई है। बोली तो मैनू आँदी नहीं थी, छुटता खलोता ही। मैं क्या और आया। मैं क्या उन्हें बंदे उन्हें पता हटाया, मैं ज़ियारत की थी। फिर आया जो फिर मैं ज़ियारत फिर आया। 7वां तवाफ तेवें आके ना मुड़ के मैं कहता यार हूँ व्हील चेयर ना खाने कब दे नाल लै गए। क्यों हाजी? मैं यार मैं हिजरे असवद दा बोसा लैना। हाजी कमाल होगी तेरे वाल, उत्थे चंगे भले बंदे को नहीं लिता जाता। मैनू थोड़ी गर्मी आ गई। अब मैं क्या तू मैनू दवाना है? अखीर वो नाल ले गया। जिस वे मैं हिजरे असवद दे मदबर ते गया ना, एक कुड़ी ते एक मुंडा पता नहीं कितों दे ने, उन्होंने धिक्के मार मार के बंदे पता किया, कहते आओ जी। मैं जाके हिजरे असवद दा बोसा लिया। उत्थों मुड़ के फिर चलान लैंदे असीं गया चले उत्थे जिथे कहा सी मुंडे नूं, कट्ठे होए हैं। लो जी हुण चलिए जी अगों हुण मदीने चले गए। फिर जिस गड्डी च बैठे हैं दोवां दी सीट ड्राइवर दे मगर मिलती रही है, नाल बंदा कोई नहीं बैठा रहा। पैसे मेरे एक दे गनीजे ने। लो जी उत्थे गया चले जी थे रोज़े का महीना, तो उत्थे तकाब बह गया। लो जी उत्थे रोज़े अपने रखी जाने, नमाज़ां पढ़ी जाने, हर नमाज नाल जनादे ने, नमाज तस्बीह पढ़ी जाने, तराबियां पढ़ी जाने, मौजां लाई जाने, हजूर दे रोज़े ते चले जाने। जालियां कोल खलोन नहीं दिंदे। मैं क्या यार हाजी दे राते खलार, अम्मियां ही खलोन नहीं दिंदे। मैं यार तू मन खिलार तो सही, जो कड्ढणगे आप निकल जाएंगे। मैं उत्थे कोई 10-11 मिनट खलोता। हुण क्या हाजी हूँ लो जी उत्थों मुड़ के किरान उमरा करके मुड़ के की है जी अज चंद ही उड़ीक, चंद ही उड़ीक। जिवें इत्थे भी 2 मिनट चंद ही उड़ीक। ठीक है जी। मुड़ के चंद मुबारक, चंद मुबारक गिनिया तो 11 रोज़े रखे उत्थे। मैं क्या वाह बाबा निशान अली सरकार टाहली पीर
यार वाला नां रखे तो यार वाली खेड ही लगी आंदी। लो जी उत्तों फिर मुड़ के फिर उत्थे एक मेरा भतीजा ही लगता सी, बेली थी, उनका पुत्तर थी, वो रोज़ साढ़े कोल आंदा सी गड्डी लैके। फटाफट गया मैं घरों ना अपना कपड़े कुपड़े बदल के, रश बड़ा होंदा फिर भी जगह सानू उरा लभी है ईद पढ़ने वास्ते नमाज। उत्थों मुड़ के किना लेंदे असीं गै चले बदो बदी उन्हें सानू ना रवो जी तुसीं। मैं क्या फिर 2 दिन उत्थे रहे, एक तो गुजारा होंदे ने वो भी। उत्थों मुड़ के लो जी हुण चलीए। लो जी उत्थों मुड़ के फिर वापस असीं आना दमाम। उत्थों फिर जिस गड्डी 'च बैठे हैं दोवां वाली सीट ड्राइवर दे मगर ही मिलदी रही है ते बंदा नाल कोई नहीं बहंदा रहा। पैसे एक दे दित्ते ने। मैं क्या वाह बाबा निशान अली चंगा नां यार वाला रखेआ सी ते यार वाली खेड ही नाल लगी आंदी। अगों आके फिर जिस गड्डी 'च बैठे हैं फिर किना लैंदे ने। लो जी उत्थों मुड़ के घर आ गया तो गड्डी वाले हाल गड्ढे ते ला देंदे ने। पता नहीं बेटे मेरे ने उन्होंने की किया सखी दी दुआ नाल ना मेरे घर मन गड्डी लिया तो मैं घर ला के गया। वड्डियां गड्डियां ने हाल गड्ढे ते ही ला देने। मैं क्या वाह बात चो उत्तों मुड़ के लो जी हूँ अपनी वापसी है चलीए मार्केट जाके सौदा लीए। 44 किलो वजन होंदा सी एक बंदे का। लो जी लवो जी मैं क्या मियाँ तुसी जो लवो लें ते तुसी, मैं क्या मैं खजूरां ही लैनियां ने। जो मैं नज़ारा वेख्या मन खजूरां लंगर मिलिया गौर पाक सरकार ने दिता ते वरताया खाप। मैं गया मैं सारे काटन पै ने वेखे ने। एक एडी एडी लम्मी खजूर सी मैं खाधी बड़ी मिट्ठी। मैं लिया यार 2 काटन मन वो 44 किलो यानी कि होई सी कोई 5-7 किलो ज़्यादा। मैं क्या खोली ना रहन दे आ गए। रात ਨੂੰ मुड़ के साड़ी जो वापसी हुई है ना फिर असीं जहाज 'ਚ बैठे मैनू फिर दोवां वाला सोफा अगला मिलिया। पैसे घੱਟ टिकट ही दित्ती है। लो जी वो सोफे ते बह गया। मैं क्या वाह बाबा निशान अली सरकार कैथी मौज लाई हो यार वाली खेड ही नाल लगी आंदी। लो जी उत्थों मुड़ के फिर असीं घर आए तो मैं आके फिर टाली पीर गया बुल्ले जाओ जिस दरबार से गया ना जोड़ा जोड़ा खजूरां लंगर लो जी मदीने आया है सोने के शहर से वो बरसात है। आप अकीदतमंद हैं, ये इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। अल्लाह के वली से मोहब्बत करना, अकीदत के साथ उनके पास आना और खालिस्तन मोहब्बत रखना अल्लाह वालों से, तो आप महरूम नहीं रहेंगे। आपका दामन कभी भी खुशियों से, बरकतों से, इन बुज़ुर्गों की दरगाह से खाली नहीं जाएगा, मगर आपकी अकीदत का होना बहुत ज़रूरी। आपने जितनी भी गुफ्तगू सुनी इसमें सिर्फ़ एक ही बात नज़र आई, आपकी अकीदत, आपकी मोहब्बत और आपका खालिस्तान होना बहुत ज़रूरी। हर एक का अल्लाह वालों के पास आने का अपना अपना अंदाज़, जो जिस अंदाज से आता है वो उसी अंदाज से लेके जाता है। मगर इनका कहना ये कि आप बावज़ू होके आएँ, नेक नीयत से आएँ और अपनी ज़ुबान, अपनी निगाह और अपने दिल पर कंट्रोल रखें। अल्लाह वालों के पास अगर आकर आपने कामयाबी लेनी है तो यही इनका मैसेज है कि अल्लाह वालों के पास जब भी आप आएँ अपनी निगाह, ज़ुबान और दिल पर कंट्रोल रखें। हमें कसूर शहर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ से इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी एक हमारे साथ माई साहबा बैठे हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम या अली मदद। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮੀਆ ਕਲੋਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਲੀ ਮਸਤ ਮਸੀਤ ਕੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੇਵਨ ਕਲੰਦਰ ਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਕੇ ਮਾਨੀ ਆ, ਚੰਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਰੀਦਨੀ ਆ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਸੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀਦ ਆ। आपने ये रेड कलर का ये स्कार्फ सा वो बनाया हुआ है, इसकी क्या वजह है? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। तमाम बरी सरकार, ਹਾਂ ਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੱਕੇ ਮਾਨੀ ਆ ਅਸੀਂ। तमाम बरी सरकार के आप अकीदतमंद हैं। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ, 5 ਦੇਗਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। माशाल्लाह, नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन भी आप वहाँ पे देते ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਚੰਨ ਪੀਰ ਦੀ, ਸੇਵਨ ਕਲੰਦਰ ਦੀ। कितनी देर हो गई यहाँ पे आपको? ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੱਛਰ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। यहाँ पे कितनी देर हो गई है? ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਬਰੇ ਸਾਲ
ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਕਰਾਣੇ ਬਰੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੇਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਆਈ ਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। तो यहाँ पे आपने ये क्या चीज़ है? ਇਹ ਮੇਥੀ मेथी है। ਹਾਂ ਤੇ 150 ਦੀ ਹੈ तो ये 50 ਦੀ ਹੈ 100 ਦੀ इसके क्या फ़वायद हैं इस्तेमाल करने के? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਡੀ ਚ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਥੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਸੀਬਾ ਚ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪੱਕਦੀ ਆਂਡੀ। यानी कि तबर के तुसी कह रहे जे। ਹਾਂ ਲੰਗਰ आपने माई साहबा की गुफ्तगू सुनी कि मामबरी सरकार दीगर बुजुर्गान दीन का इन्होंने हवाला दिया कि उनके मानने वाले हैं। तो यहाँ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के आप मज़ार शरीफ पर इन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है। बचपन से ही वो कहते हैं कुछ याद नहीं, बचपन से ही यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये अल्लाह वालों की एक अपनी खेल है, अल्लाह बेहतर जानता है या ये अल्लाह वाले बेहतर जानते हैं। तो अकीदतमंद यहाँ पे आएँ, अदब व अदाब का ख्याल रखें। मुझे कसूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ से इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरबार आलिया हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ पर हाज़िर हूँ। हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट अब्दुल वहीद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये भी बाबा जी के दरबार शरीफ पर हाज़िर हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब। सबसे पहले तो आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आप इतनी रूहानी शख्सियात के दरबारों पे आते हैं और अपने चैनल को जो है वो यहाँ पे आके उसकी रोशनी के तहत लोगों को उजागर करते हैं कि जो दरबार हैं उनकी कैसे तज़ीम करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा राना सहेल साहब माशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट की हमारी जस्टिस आशा मलिक साहिबा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली जो जज हैं उनके साथ थे ये, और इनसे बड़ा ताल्लुक़ वास्ता है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और इस सलामती के साथ कि इन्होंने हमेशा से वकला बरदरी के साथ साथ जो वहाँ पे साइलिन आते हैं उनका भी ख्याल रखा। और एक जो बात वहाँ पे समझी जाती है कि जब कोर्ट में चले जाएं तो लोग वहाँ पैसे मांगते हैं, सहेल भाई की तो मैं ये गवाही देता हूँ कि इन्होंने अपने पास से पैसे खर्च करके लोगों के जो मसाइल हल किए हैं। और बहुत खुशी हुई आज इनसे मिल के। इत्फाक़न में हज़रत बाबा रहमतुल्लाह अलैह मज़ार पे आया। अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद में औलिया अल्लाह का जो है वो जिक्र किया है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि औलिया अल्लाह पाक जो है वो किसी डर और खौफ से जो है ना वो मुब्तला नहीं है और ना किसी गम में। तो इसलिए जो लोग यहाँ पे आते हैं मेरी उनसे ये गुजारिश है कि जो औलिया अल्लाह का जो दर्स है उसको मलूज़ ख़ातर रखें। और इसके अलावा जो एहतराम है, मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हद से ज़्यादा शिरक करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और या अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक चलें। आप उनको दुआ करें, उनके वसीले से बख्शिश अपने लिए मांगें, लेकिन वो बिदात ना करें जो कि इस्लाम में जिसकी गुंजाइश नहीं है। वही साहब माशाल्लाह आप एडवोकेट हैं। हमारे पास ना दीन का इतना इल्म है ना दुनिया का इतना इल्म है। आप जब अपने बच्चों के साथ, मैं वहीं पे बैठा था और आप अपने बच्चों को गाइड कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई वो देख के। आप फरमा रहे थे जी कि दुरूद शरीफ पढ़ें और इस तरह से आएँ, इस तरह से करें। कि कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं नहीं वो गुफ्तगू करना चाहता, मगर आपकी अकीदत इनसे कब से है और कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखें भाई, सबसे पहले तो ये बात है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कुरान मजीद के अलावा हदीस की रोशनी में मौजूद है कि जब आप दरबार पे जाएं या किसी भी कब्रिस्तान में जाएं, आप दुआ स्टार्ट करें, वहाँ उनके लिए दुआए फातिहा पढ़ें, उसके अलावा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि जितने भी मरहूमीन हैं उनके लिए सवाब, साले सवाब उनके लिए हो सके। और बिल्कुल ये बच्चों हमने भी सीखा है अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से, अपने अजीज़ों कारब जो बड़े पढ़े लिखे थे। और अब ज़िम्मेदारी है एज ए बाप कि मैं अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाऊं जो दीन के ऐन मुताबिक हो। औलिया अल्लाह का आपने जिक्र किया तो जितने भी पाकिस्तान में आपने देखा या पाको हिंद में, हिंदुस्तान में भी आपने जो देखा, तो तबलीग और इस्लाम को यहाँ पे फैलाने वाले औलिया अल्लाह हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से लेके आप ये देखें, ये जो पट्टी है
पूरी ये जो वस्ती पंजाब है, मगरबी पंजाब है, और इसके अलावा ये शुमाली पंजाब जो आ जाता है, इसमें औलिया अल्लाह का बहुत बड़ा किरदार रहा। जो पाक हिंद के लोग थे, आपको पता है हिंदुस्तान के लोग भी यहाँ पे अब आते, जब ये प्री पार्टीशन नहीं हुआ था तो उस वक्त हिंदू जो यहाँ पे जो तो रस्मात थी बहुत ज़्यादा थी। और ये जो औलिया अल्लाह थे, ख़ासकर जो बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह थे, इन्होंने अपनी जो सतार के ज़रिए एक जो तरीका अपनाया कि लोगों को, दिलों को कैसे माइल किया जाए। फिर उनकी अपनी जो शायरी है माशाल्लाह आप सुनते हैं, और वो दिल को कैसे छूती है। और उनकी जो शायरी मैंने पढ़ी माशाल्लाह, जो फर्स्ट मैंने अपना इंटर में पढ़ी, जब मैं जो इंटर में था, उसके बाद से अब तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 22 साल हो गए हैं, मैं हज़रत की जो है ना दरबार पे आता हूँ और यहाँ पे हाज़िरी दे के दुआ करता हूँ तमाम मुसलमानों के लिए कि अल्लाह पाक इनकी तवस्सुत से हमारे जो गुनाहों को माफ़ फरमाए, इनका जो एक नूर है रूहानी, जो इनके जो सबक है वो हासिल करके जाए। वही साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ, बरकतें अता फ़रमाए, आपके माल जान रिज़्क़ औलाद में बरकतें और खुस्सतें अता फ़रमाए। आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। कुछ लोग कहते हैं कि इल्म की कमी है, मेरे साथ ये एक एडवोकेट खड़े हैं हाई कोर्ट के, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, मगर अल्लाह वालों के पास आने का सिर्फ़ एक तरीका, वही जो मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ, अपनी निगाह पे, अपने दिल पर, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें। अल्लाह ताला आपको वो अता करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक भी अल्लाह मैसेज देना चाहता हूँ ये कि एक मैसेज है, इनका सुने। जो चैनल है द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99, इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। बहुत अच्छे माशाल्लाह आपके लिए दीनी जो ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, उसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। और मैंने देखा है कि मज़ार में इन कितनी ठंड में ये आए और आके अपना चैनल को यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके के साथ पहले एडजस्ट किया, फिर इन्होंने वो देखे, ऐसे लोगों से इन्होंने बात की जो पढ़े लिखे थे, जो इस्लाम की पूरी तर्जमानी कर सकें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। स्टैंड है जूतों का जी, जूतों का स्टैंड है ये। हम आपको दिखाते हैं कि ये चारपाई बनी हुई है, ठीक है, बड़ी चारपाई है। ये वो दूध वगैरह रखने के लिए बच्चों के खिलौने बने हुए हैं, चट्टू वटा, कसूरी मेथी, और यहाँ पे ये बुक स्टॉल लगा हुआ है। भाई से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपका? ठीक ठाक। आप सुनाए? कितनी देर से आप यहाँ पे? हमें हो गए 30-40 साल। माशाल्लाह, 30-40 साल, यानी कि ज़िंदगी का हिस्सा गुजर गया यहीं पे ही। जी सर। तो आप बाबा जी के अकीदतमंद हैं कि यहाँ पे स्टॉल ही है आपका? इज्जतमंद भी हैं, उन्होंने ही तो बिठाया हुआ है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, उन्होंने बैठाया हुआ है। तो आपका क्या मामूल है यहाँ पे? ये इधर हमारे ठेके हैं ना, फूलों का, जूतियों का। ठीक हो गया, यानी कि ये सारा हाथा आपके पास है। जी सर। तो कोई बाबा जी की कोई बात, जब से आप इधर आए हैं, कोई ऐसी कोई बात एक जो आपको कभी भूल ना सके, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो? बहुत कुछ है, क्या बताएं आपको। इधर बड़ा कुछ मिलता है। इसमें इसमें कोई शक नहीं है, ठीक कह रहे हैं आप, मगर कोई एक ऐसी बात। बस उनका करम ही है, उन्होंने हमें बिठाया हुआ है, यही मौज है। उनका ही करम है, उन्होंने बिठाया हुआ है, और आपके लिए ये बहुत बड़ी बात। आप अपना नाम बताएं। अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ भाई, आप कसूर के ही रहने वाले जी हैं? सर, कसूर के ही। तो पहले यही कंडीशन थी हाथे की, मज़ार की, कि बहुत सारी तब्दीली हुई है? ये तब्दीली हुई है, पहले गेट उधर था ना वो, तो अब ये 2008 से ये तामीर हुई है। जो लोग अकीदतमंद, जो ज़ाहरीन यहाँ पे आते हैं, आप कोई उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम है कि अच्छे दिल से आएँ और बाबा जी को आके अपनी हाज़िरी दें। बहुत कुछ मिलता है यहाँ से, हमें भी जैसे मिला हुआ है, उनका ही करम है। अल्ताफ़ भाई कह रहे हैं जी
कि इंसान के अंदर ही सब कुछ है, मगर वो किस तरह से हासिल करेगा वो भी इंसान के ही इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दे दिया। अगर वो अकीदत से आएगा, जिस नज़रिए से आएगा, तो अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गान दीन का सदका अपनी रहमत फरमाएगा। जो दिल में ख्वाहिश, जो मुराद, जो चीज़ इंसान लेके आता है अल्लाह वालों के दर पर, तो वो पूरी होगी। अल्ताफ़ भाई भी यही कह रहे हैं, वो पूरी होगी। हमारा भी ये अकीदा है कि हर चीज़ पे कादर अल्लाह ही की ज़ात है और अल्लाह ही करने वाला है। अल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं, इनसे इनके मतलब हो के उनसे रब्ता किया जाए तो बहुत कुछ मिलता है। अल्लाह पाक सुनते हैं। फिर अल्लाह ताला इनके वसीले से इन्होंने नेक कमाइयाँ की है ना, 300-400 साल हो गए हैं, देख ले सलाम हो रहा है, सारा कुछ अकीदत से आते हैं लोग, बड़े तहे दिल से आते हैं, तो ये मुरादें लेके जाते हैं। शुक्रिया अल्ताफ़ भाई, आपने बात जो भी की। मांगा है ना इधर से हमें मिला है। अल्ताफ़ भाई कह रहे हैं जी हमने भी जो कुछ मांगा है अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से अता किया इन बुज़ुर्गों के तफ़ैल। ये एक सिफारिश का एक वसीला है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, शुक्रिया अल्ताफ़ भाई। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ अल्ताफ़ भाई। आप जब कभी आएँ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ, जब आप इंटर होंगे तो लेफ़्ट पे जो आता है सारा इन्हीं के पास है। वो कहते हैं कि हमने ही ये ठेके पे लिया हुआ या जो भी लीज़ होता है, तो पिछले 35-40 साल से यहाँ पे बाबा जी की नज़र करम से ही बैठे हुए हैं। तो मुझे कसूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार से इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।